بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ وائس۔ میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں ایک گاؤں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بھی خوش ہوئی اور اب دولت کی لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کروانے لگی۔ ایک دن مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ کیوں میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بانجھ ہو گئی اور میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ مگر شادی کی پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام فرزانہ ہے اور میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں ایک سرکاری اسپتال میں دائی تھی، اسی وجہ سے میں بھی ایک دائی بنی تھی اور اسی سرکاری اسپتال میں دائی کی نوکری کرنے لگی۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ مجھے دولت چاہیے تھی، بہت بڑا گھر چاہیے تھا۔ مجھے یہ نوکری پسند نہیں تھی جہاں پر مجھے دوسروں کی گندگی اٹھانی پڑے اور بدلے میں مجھے 100-200 روپے ملے جیسے کوئی فقیر ہوں۔ میرا تو خواب یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ہم غریب لوگ صرف بڑے بڑے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، پورے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دل کی یہ خواہش تھی، اس لیے میں جب ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرواتی اور میں دیکھتی کہ وہ سارے کام کیسے کرتی ہے تو مجھے وہ سارے کام آتے تھے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ہم پورا دن فون پر بات کرتے تھے اور اس کے خرچے بھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ کبھی اس کو بیلنس کے لیے پیسے چاہیے تھے، کبھی کوئی سوٹ پسند آ جاتا تو مجھے تصویر بھیج دیتا کہ میرے لیے خرید لو۔ میں اسے محبت کرتی تھی، اس لیے میں یہ سب برداشت کرتی رہی۔ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی کہ یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنی جان چھڑوا لے۔ اس بات پہ میں اپنی اماں سے جھگڑا کرتی۔ ایک دفعہ میری ماں بہت بیمار ہوئی اور 15 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو 15 دن کے بعد کال کی اور کہا کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں، چلو مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ تو گویا ایسے پلٹ گیا جیسے اپنی بات اس نے کبھی کی ہی نہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی تو اس کی کزن سے بچپن میں ہی طے تھی۔ دل تو میرا بہت دکھا، دل کیا کہ اسے کھری کھری سنا دوں، اور میری قسمت ہی خراب تھی، اس لیے کچھ بول نہ پائی۔ اب مجھے شہر میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھر میرا کرائے کا تھا، ماں میری اس دنیا سے چلی گئی اور جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں گاؤں چلی آئی جہاں میری ماں کی ایک کزن رہتی تھی۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہاں پر کوئی سکول بھی نہیں تھا۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ اور گنوار تھے۔ یہ میرا آخری موقع تھا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے وہ کلینک بنانے میں لگا دی، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، میرے پاس کوئی بھی مریض نہیں آیا۔ مجھے لگا یہاں میرا کام چلنے والا نہیں۔ پھر جب ایک رات میں اپنی دکان بند کر کے وہاں سے جانے لگی تو ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی میرے پاس آئی۔ انہوں نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میری طرف لپکی اور وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاتی کہ میں ڈاکٹر نہیں نرس ہوں تو وہ بوڑھی عورت ایک ہی سانس میں بولی کہ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور 3 مہینے بعد اس کی شادی ہے، جبکہ اس کو 3 مہینے کا حمل ہے۔ مہربانی فرما کر ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی مشکل سے 13 یا 14 سال کی تھی۔ شکل سے تو ایسی لگتی بھی نہیں تھی جیسے اس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو، اور سر جھکائے کھڑی تھی اور لگتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے خوب مارا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی تھی۔ ظاہر ہے غلطی اسی کی تھی۔ اس کا بچہ گرا دے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتی تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب بھلا پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ مجھے بھی برے نہ لگے اور میں یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی کیونکہ مجھے تو یہ کام آتا تھا۔ اگر وہ مجھے ڈاکٹر سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا، ہاں میں ڈاکٹر ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہے تو اس کے بہت زیادہ پیسے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا تھا انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی۔ میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے مسائل لے کر آنے لگی۔ میں نے بھی ان سے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور میں ہر روز کے 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی
کہ गाँव से एक लेडी डॉक्टर आई हैं जो बहुत अच्छा इलाज भी करती हैं। फिर तो मेरे पास ऐसे ही औरतों का रश लग गया। मैं नाजायज़ केस भी कर देती और औरतों के बच्चे भी गिरा देती। क्योंकि ये गाँव था, इसलिए यहाँ पर ऐसे केस ज़्यादा आते थे। गाँव के लोग देखने में तो सादा ज़िंदगी गुजारते, लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। क्योंकि वो ज़मीन और खेतों के मालिक होते, इसलिए वो मुझे मुँह मांगी कीमत अदा कर देते। काम तो मेरा बहुत अच्छा चल पड़ा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस शख्स ने अपना नाम अहमर बताया और अपनी बीवी का नाम इरम। उसका कहना था कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि शादी को अभी 1 साल हुआ है, मैं उम्मीद से नहीं हुई। मैं उसकी बीवी को चेक करने के लिए पीछे वाले कमरे में ले गई, जबकि अहमर बाहर टेबल पर बैठा था। उसको देखते ही मेरे दिल में हलचल सी पैदा हुई और मेरा दिल उस शख्स पे आ गया। पहली मर्तबा मुझे कोई मर्द इतना पसंद आया कि मैं उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी बीवी का कोई मसला है। 1 साल से उनको औलाद नहीं हुई, लेकिन मैंने जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो औरत बिल्कुल ठीक थी, पर शायद अभी कुदरती तौर पर इस मामले में देर हो रही थी, क्योंकि हर जान का इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है। शायद उनके लिए भी अभी वो वक्त नहीं था। मैंने ये बात उसके शौहर को नहीं बताई और कहा कि यहाँ कोई मसला तो मुझे लग रहा है, मैं दवाई लिख लेती हूँ। 1 हफ्ते के बाद फिर चक्कर लगाएं। मैंने दवाई भी 2-3 हज़ार की लिख दी और 1 हफ्ते के बाद दोबारा आने का कह दिया, ताकि मैं उस शख्स को दोबारा देख सकूं। रात में भी मैं उस शख्स के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसका हुलिया और उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं एक शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं उसको हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद वो अपनी बीवी को दोबारा ले आया। मैंने उसकी बीवी को ऐसी दवाई दी जो मुझे देरी नहीं चाहिए थी। उसकी बीवी बहुत गहरी सहमी थी, बस मतलब की बात बताती थी, वो भी डरते हुए। मेरे लिए वो बहुत आसान शिकार थी। मैंने उसकी बीवी को अंदर बैठने को कहा और बाहर टेबल पर आकर उसके शोहर को ये झूठ बोल दिया कि देखें, आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। वैसे तो वो शख्स इतना बेवकूफ़ था कि उसे इस बात का शक नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को वक्ती तौर पर ऐसी दवाई दे दी कि वो वहाँ न बन सके। चाहे आप इसका इलाज करवाएं या चाहे इसको शहर ले जाएं, ये कभी भी आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। अहमद तो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसने मुझसे बार बार पूछा, कोई इलाज नहीं है? मैंने कहा, जी कोई इलाज नहीं है। ऐसे मामलात में कोई ना कोई इलाज तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। अहमद ने परेशानी में आकर मुझे ये बताया कि मेरी माँ बीमार है और पोते की शक्ल देखना चाहती है, और ये औरत अगर औलाद नहीं दे सकती तो अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैंने फौरन कहा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। कहने लगा, दूसरी शादी कौन सा आसान है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया। उसने पर्ची देखकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और पर्ची अपनी जेब में डालने के बाद अपनी बीवी को गुस्से से बुलाया और कहा कि चलो घर चलो। मुझे अहमद की कॉल आ गई और बात यहाँ से शुरू हुई। आपने मुझे अपना नंबर क्यों दे दिया? मैंने बिना वक्त ज़ाया किए उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और कहा कि वो मुझे देखने में ही बहुत अच्छा लगा है। मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। और इसी तरह हमारे रोज़ बातें होने लगी। हम एक दूसरे के करीब से करीब तर आने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफ़ा बातें करते, कॉल पर नहीं तो मैसेज पर, एक दूसरे के साथ बातें करने में ही मसरूफ़ रहते। एक दिन अहमद ने कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन वो लड़की जो अब तो मेरी बीवी है, दरअसल मेरी कज़न भी है। क्या तुम उसको बर्दाश्त कर लोगी? मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। अहमद खामोश हो गया और मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? कहने लगा, मैं क्या सोच सकता हूँ मेरी जान, मैं उसको लड़की को फ़ौरन तलाक दे दूँगा और हम इसी हफ्ते निकाह करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और हफ्ते में ही मेरा निकाह हो गया। हमारे निकाह में सिर्फ अहमद की माँ और कुछ गवाह मौजूद थे। मैं खुश थी कि मैं अमर की बीवी बन गई और मैंने चालाकी से जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब अहमद कमरे में आया। वो बहुत हसीन लग रहा था। मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पे 5,000 रुपये रखे, जो मेरी मुंह दिखाई थी, और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि अगर तू इस घर में अपनी औकात में रहेगी तो खुश रहेगी। इस घर में जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान और परेशान रह गई कि आखिर वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा था और मुझसे कैसे बात कर रहा था, जबकि मैं एक दिन की दुल्हन थी। कुछ ही दिन में मुझे ये समझ आ गया कि अहमद आम इंसान नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती मरीज़ है, जिसको औरतों पर जुल्म करके खुशी मिलती है। वो लड़की दरअसल अपनी जान छुड़वा रही होगी और मैं इस पागल के चुंगल में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अहमद के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी थी।
कहने को तो मैं भी बहादुर थी, लेकिन उसके सामने अगर मेरी ज़बान चलती तो वो मारपीट शुरू कर देता। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरने लगे, मैं भी उम्मीद से नहीं हो रही थी। अहमद ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तू डॉक्टर है, कहीं तो अपने साथ कुछ किया तो नहीं, कि अभी तक हमारी औलाद नहीं हो रही। 1 साल का अरसा गुजर गया और ये 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि मैंने अहमद की बीवी इरम को देखा। वो वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन अंदर आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस हैवान से बचा लिया। उसने बेशक तान से किया था, लेकिन यही हुआ था। वो कहने लगी कि मैं खुद कभी भी अहमद से खुला नहीं ले सकती थी और वो कभी मुझे तलाक न देता, लेकिन तुमने हमारे बीच आकर मुझे बचा लिया। मैं मजलूम भी बन गई और मेरी एक कज़न से मेरी शादी हो गई। अल्लाह ने मुझे प्यारी सी रहमत से नवाज दिया है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त ज़रूरत है। वो चली गई और मैं फूट-फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास कोई और चारा भी ना था कि मैं क्या करती। उस शख्स के साथ रहना मेरी मजबूरी थी। मैं कैसे उसके चुंगल से निकलती। मेरा भी इरम वाला ही हाल था। मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा साथ देता। अहमद रोज़ मेरा फ़ोन भी चेक करता और मुझे छोड़ने भी खुद आया करता था। उसने मेरे क्लिनिक के साथ बनी करियाने की दुकान वाले शख्स को कुछ पैसे भी दिए थे, ताकि वो मुझ पर नज़र भी रख सके। एक दिन एक शख्स पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हो गया। उसका कहना था कि मैंने उसका बच्चा गिराया है, जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे शहर की जेल में ले गए। मैंने भी एक बार जुर्म कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी। अहमद भी ये बात नहीं जानता था। जब उसे ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और ये बात मशहूर नहीं करवाना चाहता था कि उसकी बीवी एक धोखेबाज थी, जो कि अब जेल में है, क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवा दिया गया था, जिसकी जमानत जल्दी नहीं होने वाली थी। अहमद ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दी और मुझे सज़ा हो गई। और दरअसल मेरी सज़ा ख़त्म हो गई। मैं जेल में अपनी सज़ा पूरी की, दिन रात अल्लाह से माफ़ी मांगती रही कि मुझ पर कोई और आजमाइश ना आए। जेल से निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और अस्पताल में नौकरी करने लगी, जहाँ पहले नौकरी करती थी। अब मैंने अपनी शिफ्ट नर्सरी में लगवाई। बच्चों की नर्सरी में कोई भी नर्स काम करने के लिए हामी नहीं भरती थी, क्योंकि वहाँ सारा दिन और सारी रात जागना पड़ता था। बच्चे बहुत रोते थे और बार-बार एक-एक बच्चे को उठा के चेक करना पड़ता था। कभी किसी को दूध पिलाना, तो कभी किसी की सफाई-सुथराई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी शिफ्ट यहाँ इसलिए लगाई, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ वक़्त गुज़ार के अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना चाहती थी। मेरी वजह से जाने इस दुनिया में कितने बच्चे आने से रह गए। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं एक बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ सारा दिन गुज़ारती हूँ। उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआओं ने बचा लिया। मेरे साथ मज़ीद कुछ बुरा ना हो, जबकि मैं इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा की हकदार थी। शायद वो दुआएँ मेरी माँ की थी, जिस माँ को मैंने कभी अच्छा ना समझा। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस वाक़ये से यही सीखा कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और धोखा हमेशा धोखा ही रहता है, जो एक दिन सामने आ जाता है। इसलिए इंसान को इंसान बनकर ही रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।